Hi friends, so this is Rashika here. I am making my first YouTube video for you all because I listen so many thoughts about history. As you all know that everybody seems or everybody thinks that history is too annoying and too disgusting, but it is not like that. I am here to make it easy for you all. So we start from class 8 first chapter. So I guess I introduce myself. My name is Rashika. I am a college going student. So let's start. The first chapter of class 8, it's all about introduction, how, when and where. You all know that everybody think that history is to memorize things or to remember a lot of dates, everything which is quite complicated for a person to memorize. But no, history is not like that. History is basically a story, means past story which has a topic past. So we start from the chapter introduction, how, when and where. Everybody take a notebook with them, so if there is something important they can write on it. So the first topic of this chapter is how how important are dates. You all know that history is based on dates, but it is not the thing that history is truly is all over based on dates. No. So I'll start the reading from here. There was a time when historians were fascinated with dates. You all have listened to me that history is not only about dates, and history is not something that you have to memorize a lot of dates. No, history is basically a story. Means if like a person is reading a story book, तो कैसे उसे मतलब एकदम से सारी स्टोरीज अच्छे से याद रहती है ना, कि हाँ ये कहानी तब हुई थी, ये कहानी तब हुई थी। तो वैसा ही कुछ हिस्ट्री का होता है। इसमें आपको डेट्स याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट इम्पॉर्टेंट तो है डेट्स याद रखना, उतना ज्यादा नहीं। अगर आप उसको एक स्टोरी की तरह लर्न करना बैठे, उसे याद रखने की कोशिश करोगे, देन इट इज क्वाइट सिंपल एंड इजी फॉर यू ऑल, एंड you guys love history from the way I am teaching to you. So let's continue with that. There were heated debates about the dates which rulers were crowned or battles were fought. Means you had read this, that ki on there is a on dates there is a lot of debates that on which मतलब कि कब एक राजा किंग बना था, कब उसने लड़ाइयाँ लड़ी। तो उसमें हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है कि हाँ हमें डेट्स याद रखने की, ये लड़ाई तब हुई थी, ये वर्ल्ड वॉर तब हुआ था। ठीक है। बट अगर आप उसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से लोगे कि हाँ यार ये तो एक कहानी है, जैसे एक राजा और रानी की कहानी होती है, वैसे ही ये एक कहानी है, हम इसको कहानी की तरह सुनते हैं, तो आपको डेट्स को याद रखने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो वी कंटिन्यू विद that in the common sense notion, history was synonym with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. Is such a conception true? Will you guys think that this conception is really true, that you have to memorize a lot of dates? But it is not like that which you all are thinking about it. History is certainly about change that occur over time. It is about finding out how things were in the past and how things has changed. As soon as we compare the past with the present, we refer to time. We talk of before and after. You all guys very well aware about it. Like you all know at what time corona virus has come. ठीक है, मतलब उसको क्या आपने क्या उसको एक प्रेशर डाल के उस चीज को क्या मेमोराइज किया? नो, इट इज अ बिफोर एंड आफ्टर स्टोरी, कि पुराने जमाने में क्या चलता था, अब क्या हो रहा है। तो उसमें अगर आप उसको सिर्फ ऐसे एक कंपैरिजन क्रिएट करके चलोगे ना, कि जैसे कैसे चेंजेस हुए, लाइक पहले हमारी फैमिलीज कैसे रहती थी, मतलब पहले पुराने लोग कैसे रहते थे और अब कैसे रहते, तो इट इज क्वाइट इजी फॉर यू ऑल टू थिंक कि हिस्ट्री इतनी इजी हो सकती है। मतलब आप लोगों को खुद इतना फील होगा कि यार सीरियसली हिस्ट्री इज टू इजी। सो
We'll continue with next slide. Yes, you read the name of the chapter how, when and where. तो हम इस चैप्टर में बिल्कुल ऐसा ही कुछ पढ़ने वाले हैं कि क्या मतलब कहाँ, कैसे और कब ये चीज, ठीक है. Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. But most of us have our moments of wonder. When we are curious and we ask questions that actually are historical, watching someone sip a tea of sorry, watching someone sip of cup of tea at a roadside tea stall. You may wonder, when did people begin to drink tea or coffee? Looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were railway built and how did people travel a long distance before the age of railways? Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper being to be printed. You guys, मतलब in this paragraph basically I wanted to say that कि वो ये कह रहा है कि हिस्ट्री एक वो नहीं है जिसे आपको इतना प्रेशर डाल के अपने दिमाग पे याद करके बैठना पड़ेगा. नहीं, आपको सिर्फ एक कंपैरिजन क्रिएट करना है. मतलब अगर हम एक रोड साइड पे जा रहे हैं, हम वहां पे ये भी तो सोच सकते हैं कि लाइक पुराने जमाने में जब बाइक्स नहीं थी, जब कार्स नहीं थी, जब एक्टिवा नहीं थी, तो मतलब कि हाउ पीपल ट्रैवल हेयर एंड देयर, मतलब हाउ दे ट्रैवल. तो अगर हम ये सोचें और वहीं से हम अपनी हिस्ट्री में हमने कहीं पढ़ा हो कि यस पुराने ज़माने में बुल कार्ट्स होती थी, वो इतनी सेंचुरी में आई, वो इस टाइम आई, वो ऐसे यूज हुई, व्हील किसने इन्वेंट किया था. यू गाइज आर all aware about the things. So history is not a pressure for you all. History is just a fun to make a comparison between before and after. So let's continue with that. All such historical questions refer us to notion of time, but time does not have to be always precise, dated in terms of a particular year of a month. Sometimes it is actually incorrect of fixed precise date to process that happen over a period of time. People in India did not being drink tea one fine day. They developed a taste for it over time. There can be no one clear date for process such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established, or the national movement started, or changes took place within the economy and society. All these things happened over a stretch of time. We can only refer to a span of time, an approximate period over which particular changes become visible. So, in this paragraph, the thing is the writer, the author wants to say that कि हर एक चीज ऐसा नहीं है कि एक बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हैपन होगी, ऐसा नहीं है. कई बार क्या होता है, हमें बहुत टाइम लग जाता है एक पर्टिकुलर उस चीज को फाइंड आउट करने में. लाइक ऐसा नोबडी नोज अबाउट कि व्हील, जो हमारी जो साइकिल का जो व्हील होता है वो कब एग्जैक्टली इन्वेंट हुआ था. यू ऑल गाइस नो दैट इट वाज इन्वेंटेड बाय द अर्ली मैन्स. तो if can anybody answer me about this, that when it is being invented on which date? No, nobody has the answer of it. So in this paragraph they wanted to say that कि हिस्ट्री सिर्फ एक ऐसा नहीं होता कि हाँ कि एक बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चीज हैपन हो इस डेट को याद करके बैठ जाओ. नहीं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत लंबे टाइम तक हम एक चीज को एक नोट कर रहे हैं, एक चीज को हम समझना चाह रहे हैं, फिर वो बाद में हम मतलब कि उसकी हम एक खोज कर लेते हैं. तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ द थिंग्स, नॉट द बिल्कुल पॉइंट ऑफ एक्यूरेट ऑफ टाइम. ओके, like the example of British rule in this paragraph they have given. So we move to next slide. Now you have seen the picture of the Lipton teas. अभी भी मतलब काफियों ने सुना होगा लिप्टन ग्रीन टीज एंड एवरीथिंग टी बैग्स आर इंट्रोड्यूस. ये बहुत पुरानी एडवर्टीजमेंट है. मे बी आई एम नॉट श्योर कि मैंने पहले की स्लाइड में आपको एक पिक्चर थी वो मैंने आपको शायद एक्सप्लेन नहीं की.
but that picture is about the Brahmanas offering Shastra to Britons. Okay, so now we continue with the slide. When they do we continue to associate history with a string of dates? This association has a reason. There was a time when history was an account of battle and big event. It was about rulers and their policies. Historians wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeed to the throne. For events such as these, specific dates can be determined, and in histories such as these, debates about dates continue to be important. मतलब पहले क्या होता था, जो मतलब कि बहुत पुरानी हिस्ट्री में हमारे पास कभी कभार हमें लोगों को ये भी याद करना पड़ता था कि हिस्ट्री में कौन सा बैटल कब हुआ, कब एक किंग ने अपना मतलब एक राज सिंहासन पे वो बैठा, कब एक किंग का बेबी हुआ, कब एक किंग मैरिड हुआ, कब उसने ये वाला वॉर फोर्ट किया, कब उसने कब वो मरा, कब उसके नेक्स्ट रूलर आ गया. मतलब ये सारी चीजें तो मतलब चिल्ड्रंस थिंक दैट हिस्ट्री इज too boring, too annoying, but not, it is not really not like that. I am here to make your history too easy. So as you have seen in history textbook of past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They look at how people earned their livelihood, what they produced and ate, how city developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, how cultures and society changed. You guys all had studied the history textbooks. In that textbook now the author has written too many things, like ये इशू कब हुआ था, मार्केट्स कैसे बनी, मतलब एक प्रॉपर हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं कि एक चांदी मतलब एक सोना कैसे बनता है, वो कहाँ फाउंड होता है, ठीक है, आयरन ओर्स माइनिंग, मतलब वो जो हमारे चांदी गोल्ड के सिक्के पुराने जमाने में चलते थे वो कैसे आए, ये सब आजकल हिस्ट्री में चल रहा है. एंड मे बी इट इज इंटरेस्टिंग फॉर चिल्ड्रंस टू नो अबाउट देयर national history or the history how that country is formed, how India formed. This is too interesting for children. I make it interesting for sure. So which dates, the question is which dates, कौन सी dates आपके लिए basically important होती है, by what criteria do we choose a set of dates as important, मतलब हम कैसे माने कि ये डेट बहुत important होती है. The dates we select, the dates around which we compose our story of past are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of event as important. If our focus of study change, if we begin to look at new issues, a set of dates will appear significant. Consider an example. In the histories written by British historians in India, the rule of each governor general was important. These histories began with the ruler of the first governor general, Warren Hastings, and ended the last viceroy, Lord Mountbatten. In separate chapters, we read about the deeds of other Hastings, Wellesley, Bentinck, Dalhousie, Canning. मीन्स इन दिस मतलब एक क्वेश्चन इज अराइज कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए. ऐसा नहीं है हर एक मतलब मान लो एक चैप्टर में 18 डेट्स हैं याद रखने के लिए, तो आप 18 की 18 उसको रटने लग जाओ, तो ऐसे तो आप लोगों के लिए चीजें बोरिंग होती रहेंगी. नहीं, पुराने जमाने में जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि ब्रिटिश जो हिस्ट्रीज थी उसमें हर एक गवर्नर जनरल की टाइम पीरियड को याद रखना जरूरी होता था, बट ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता. आपको पहला पता है, लास्ट पता है, बीच के एक दो पता है, तो इट कैन बी वर्कड विद दैट. मतलब आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स चाहिए याद रखने के लिए जो कि आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक आई गिव यू वन एग्जांपल. इज एवरीबडी नो when was railway invented? If you guys know me, comment me in comment box. ये डेट्स आपको याद होनी चाहिए. लाइक रेलवे कब आया था, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो कौन था,
ठीक है, कौन सी ईयर में था? लाइक हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज वॉरेन हेस्टिंग, became the first governor general of India in 1773 at the time of British rule. उसके बाद हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, दीज टाइप ऑफ डेट्स, इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ, एंड फॉरेन में जो भी गवर्नर जनरल्स होते हैं, ये सब चीजें, दीज डेट्स आर इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज. सो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्लाइड. Lawrence led, मतलब कि there is a so many names of the governor general. So it was seemingly never ending succession of governor general and viceroys. All the dates these history books were linked to their personalities, to their activities, policies and achievement. It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of these of their lives marked the different chapter of the history of British India. बेसिकली उन्होंने ये कहा हमें कि ये जो एक हमारा गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय का था ना, ये नेवर एंडिंग सक्सेशन था. मतलब क्या हम सबकी डेट्स रिमेंबर कर सकते हैं? इट इज टू डिफिकल्ट एंड टू बोरिंग फॉर रिमेंबरिंग ईच एंड एवरी डेट इन chronological order. Chronological order means to say in line wise, like one after two, two after three. This line is chronological. So ये बहुत एक टफ काम है कि हम उसको सबको याद रखें. ठीक है, तो can we not write about the history of this period in a different way? How do we focus on the activity of different group and classes in India society within the format of this history of governor general? क्या हम इस चीज को डिफरेंट वे में नहीं, मतलब इतना बच्चों के लिए हम इतना इंटरेस्टिंग बना दें इस चीज को कि बच्चे हिस्ट्री से प्यार करने लगे, ना कि उसे अनोइंग समझे, उसे बोरिंग समझे. भागते हैं बच्चे हिस्ट्री से कि how it is boring, ma'am, it is too difficult to understand the things. But it is not like that. When we write history or a story, we divide it into chapters. We do things. It is to give each chapter some coherence. Basically हमने हिस्ट्री में इतनी बड़ी हमारी हिस्ट्री है, हमने उस हिस्ट्री को क्लासेस में डिवाइड कर दिया, फिर क्लासेस से हमने उसको चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया ताकि एक बच्चे को इतना इंटरेस्ट हो कि हम कोहेरेंस में उसको एक मतलब लाइन वाइज उसको हिस्ट्री बताएं और अच्छे से पढ़ाएं. Sorry, it is to tell a story in what a way that makes some sense and can be followed. In the process, we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. In the history that revolve around the life of British Governor General, the activity of Indians simply do not fit. They have no space. What then do we do? Clearly, we need another format of our history. This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. बेसिकली अब एक सिंपल सा मेरा सवाल है, क्या आपको 16 सेंचुरी में 17 सेंचुरी में क्या हुआ ये याद रखना अब जरूरी है इन दिस मॉडर्न टाइम? नो, इट इज नॉट that much necessary to memorize the things which are happened in 16 or 17 century. No. So हमने क्या करा, हिस्ट्री ने बेसिकली क्या करा, उन चीज़ों को थोड़ा कम कर दिया और उसको इतना सिंपल बनाने की कोशिश की कि हम ऐसा लगे कि हम उनको बच्चों को एक स्टोरी सुना रहे हैं कि इतने टाइम की स्टोरी हमने उनको 7th क्लास में बता दी, चलो अब इतने टाइम की स्टोरी अब हम उन्हें 8th क्लास में बताते हैं. बट बच्चों को ऐसा लगता है कि यार कितना बोरिंग है, हम क्यों ऐसे पढ़ रहे हैं कि ये कब मरा ये कब मरा. ऐसा नहीं है. अगर आप हिस्ट्री को इतना इंटरेस्टेड होगे, इट इज टू इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल. I'll make it easy. I'll try my best to do that. How do we periodize? How do we periodize means हम उसे कैसे periodic में रखें. In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. In this, he divided Indian history into 3 parts: Hindu, Muslim, and British. This periodization came to be widely accepted. Can you think of any problem with this way of looking at India story? मतलब आप एक खुद सोचो, एक क्वेश्चन मैंने आपसे भी मतलब इसमें क्वेश्चन है
कि आप लोगों को नहीं लगता कि ये एक थोड़ा मुश्किल चीज है, मतलब उस चीज को याद करने के लिए कि आपने सेक्टर्स बना दिए, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश कर दिया, ये एक थोड़ा सा अजीब चीज है। क्या इंडिया की हिस्ट्री इतनी ज्यादा बोरिंग है जिसे हम एक ऐसे याद रखें जिसको हम हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश ब्रिटिश से याद रखें? नो। Why do we try and divide history into different periods? We do so in an attempt to capture the characteristics of a time, its central feature as they appear to us. So, the terms through which we periodize. That is, demarcate the difference between periods became important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to next. बेसिकली हिस्ट्री को डिवाइड करना इतना ज़रूरी क्यों है डिफरेंट पीरियड्स में? ताकि हम हर एक टाइम का एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक रख पाए और उसे हम इजीली उन करेक्टरिस्टिक्स की मदद से याद कर पाए। जैसे हम एक पर्सन को क्या ज़्यादातर उसके नाम से याद रखते हैं या उसकी पर्सनालिटी से? हम ऐसे ही याद रखते हैं ना, यार वो बंदा तो कितना गुस्से वाला है। हम ऐसे ही एक चीज़ को उसकी पर्सनालिटी से, उसके करेक्टरिस्टिक से, उसके फीचर से याद रखते हैं। वैसे ही हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री में इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ था यार? इस टाइम पीरियड पे तो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, तो जैसे ही आप वर्ल्ड वॉर 1 का नाम लोगे तो आपको उस डेट याद आ जाएगी। इट इज इजी। सो मे बी आई विल नॉट अवेयर दैट मैंने ये पहले आपको पिक्चर दिखाई नहीं है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ वॉरेन हास्टिंग विच इज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773. So Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim deposed the rule the country. Religious intolerance, caste because and superstitious practice dominating social life. British rule. मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। बेसिकली मिल ऐसा सोचते थे कि यूरोप से बेस्ट कंट्री और कोई नहीं है। हर कंट्री का जो सिविलाइजेशन है बहुत लो लेवल का है, बट ऐसा नहीं है। जेम्स मिल थोड़ा सा गलत सोचते थे इस पॉइंट पे। टू डू दिस इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट, इंस्टीट्यूशन एंड लॉज इन इंडिया। बेसिकली उस चीज को, मतलब उनका सिविलाइजेशन हमसे अच्छा क्यों है, हमें इस चीज को प्रूव करने के लिए या उन्हें इस चीज को प्रूव करने के लिए इंडिया में वो ब्रिटिश कल्चर लाना पड़ा, ताकि हमें पता हो यूरोपियन मैनर्स क्या है, आर्ट्स क्या थे, उनके इंस्टीट्यूशंस कैसे थे, और उनका जो लॉ था वो इंडिया में उन्होंने लागू किया जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर उन्होंने रूल किया। Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories in the India to ensure the enlightenment and happiness to the Indian people. Basically Mill ऐसा मानते थे, उन्होंने suggest किया था ब्रिटिश को कि इंडिया पे राज करो ताकि उनकी जो enlightenment और happiness उन इंडियन पीपल्स को दो। For India was not capable of progress without British help. वो ऐसा बिलीव करते थे कि इंडिया ऐसे हमारी मदद के बिना कभी प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता। In this idea of history, British rule represented all the forces of process and civilization. The period before British rule was one of the darkness. Can such a conception to be accepted? In any case, can we refer to any period of history as Hindu or Muslim? Did not a variety of faith exist simultaneously in these periods? Why should we characterize an age only through the religion of the ruler of the time? To do so, it is to suggest that the lives and practice of the others do not really matter. Basically, ऐसा इतना इम्पोर्टेंट आजकल आप सबको एवरीबडी इज अवेयर अबाउट दिस कि रिलीजियस इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री। हिंदू और मुस्लिम बस एक पीरियड, एक टाइम था कि हाँ इस टाइम पे हमारी कंट्री पे एक टाइम पे औरंगजेब ने भी राज किया। वो सिर्फ एक टाइम पीरियड था, वो एक टाइम लाइन है हिस्ट्री की। बाकी उसको इतना ज़्यादा मेमोराइज, उनको रिलीजियस के बेस पर डोमिनेशन देना इंडिया को ऐसा ज़रूरी नहीं है।
We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. आप everybody knows that मुगल एम्पायर आया, ठीक है, आगे उनका अशोका, उनका जो ग्रैंड सन आया वो आया, ठीक है, पल्लवास थे, राष्ट्रकूटास थे, इन सारे किंगडम्स ने जो आके राज किया, क्या ये एक सेम फेथ पे थे? नहीं. इंडिया के जो रूलर्स थे पुराने जमाने के वो भी सेम फेथ पे नहीं थे. तो जेम्स मिल्क का हिस्ट्री को हिंदू मुस्लिम पे डिवाइड करना, इट्स नॉट सेम थिंग, बिकॉज हर किसी का एक अपना बिलीव है, रिलीजन है, तो वो उसका अपना सोच है. मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू एशियंट, मेंडलीव एंड मॉडर्न. बेसिकली इंडियन की जो हिस्ट्रीज थी, जो मतलब ब्रिटिश क्लासिफिकेशन जो हिस्ट्री को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. एक डिवाइड उन्होंने किस में किया? बेसिकली उन्होंने एक डिवाइड किस में किया? एंशियंट में. हियर यू कैन सी, उन्होंने एंशियंट में डिवाइड किया उसे, मेंडलीव में डिवाइड किया उसे, और एक उन्होंने डिवाइड किया मॉडर्न में. एंशियंट पीरियड हमारा कौन सा था? बहुत टाइम, जिसे हम पेलोलिथिक एज भी बोल सकते हैं. मेंडलीव कौन सा? एक बीच का जो हमारा टाइम है. एंशियंट पीरियड हमारा हुआ बिफोर द सेंचुरी, बीसी वाला पीरियड, ठीक है. एक हमारा मेंडलीव पीरियड है जो सेंचुरी पीरियड है, 16, 17, 18 सेंचुरी वाला. मॉडर्न टाइम कौन सा है? जो गोइंग अपकमिंग 21 सेंचुरी. दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम. इट इज अ periodization that is borrowed from west, where the modern periods was associated with the growth of all the forces of modernity, science, reason, democracy, liberty and equality. बेसिकली ये जो डिवीजन, ये जो मॉडर्न हमारा पीरियड है, ये बेसिकली किन चीजों पे एसोसिएट है? साइंस पे, उसका रीजंस पे, डेमोक्रेसी, हमारी कंट्री में क्या डेमोक्रेसी चल रही है, लिबर्टी, फ्रीडम पे, इक्वालिटी, एवरीबडी इज इक्वल. Mendeleev was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. आज जो फीचर्स है वो मेंडलीव पीरियड में ना होना, उस पीरियड को हम मेंडलीव पीरियड कहते हैं. सो यू गाइस कैन अंडरलाइन दिस लाइन इन योर बुक that Mendeleev was a term used, Mendeleev was the term used to describe a society where these features of modern society did not exist. Can we uncritically accept this characteristics of modern period to describe the period of our study? हम क्या इस पीरियड को एक मतलब इस characteristics को एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने पीरियड को एक बेसिक बनाने का उसकी स्टडी पे? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom or liberty. आप सब इससे बहुत अवेयर हो कि ब्रिटिश के टाइम पे एक स्लेव्स थे. इंडिया को इक्वालिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी. नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस. उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बैकवर्ड, इतनी ज़्यादा स्टेगनेंट थी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश कि हम उसे मतलब कह ही नहीं सकते कि वो मॉडर्न पीरियड था. Many historians therefore refer to this period as colonial. Basically इस पीरियड को हमारे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्या नाम दिया? कॉलोनियल. उन्होंने इसको नाम क्या दिया? कॉलोनियल नाम दिया. बेसिकली हमारे हिस्टोरियंस ने ये जो टाइम था, जो ब्रिटिश रूल का टाइम था, उसको क्या नाम दिया? कॉलोनियल नाम दिया. ओके, सो विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ अब एक क्वेश्चन आप लोगों के सबके माइंड में आया, यार कॉलोनियल क्या है? अब एक और नया नाम आ गया याद करने के लिए. कॉलोनियल क्या है? नहीं, इसे आप लोग ऐसे अभी समझते इसे समझ जाओगे कि हाँ कॉलोनियल क्या है. सो व्हाट इज कॉलोनियल? इन दिस बुक you will read about the way the British came to conquer the country. Conquer means उसे हथिया लेना, उस पे राज करना. And establish their rule. मतलब ब्रिटिश चाहते थे कि वो अपनी हमारी इंडिया को अपने पास ले ले और उस पे राज करें. Subjugate local नवाब and राजा, सबको मिला के. Subjugating means सबका एक प्रॉपर एक ग्रुप बना के उस पे राज करना. You will see
how they established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses, brought the goods they want at low price, produced crops they need to export, and you will understand the change that came about as consequence. अरे अब सबको मुझसे ज़्यादा अच्छे से शायद पता हो कई बच्चों को कि ब्रिटिश रूल ने हमारी इंडिया की इकोनॉमी, इकोनॉमी मीन्स हमारे इंडिया का ट्रेड, काम धंधा, इकोनॉमी हमारे इंडिया का पैसा, हमारी सोसाइटी कितना लो ग्रेड कर दिया था। उन्हें जो चाहिए होता था हमारे से वो रेवेन्यू, मतलब कि वो, हमने एक मूवी थी ना लगान, उसमें कैसे था, दुगना लगान लेंगे हम, ऐसा एक डायलॉग था आई गेस, आमिर खान की मूवी है, ठीक है। उसमें कैसे उन्होंने मतलब बताया था ना कि हाँ उस चीज को कितने लोग दुगना, मतलब कि वो उस पर डबल रेवेन्यू चार्ज करते ताकि वो अपने चीजों को, अपनी एक नीड को फुलफिल कर पाए, जो उन्हें चाहिए वो उस चीज को एक्सपोर्ट कर पाए, और उसके काफी कॉन्सिक्वेंसेस भी आए। You will also come to know about the changes British rule brought about in values and taste, custom and practice. देखो ब्रिटिशर्स ने ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे चेंजेस हमारी इकोनॉमी में, हमारे इंडिया में ला दिए जो शायद आज की हमारी एक मेन चीज बन गई है। एडमिनिस्ट्रेशन पावर, ठीक है, ये जो हमारे रेलवे थी ये भी किसने इंट्रोड्यूस की थी, ब्रिटिशर्स ने तो इंट्रोड्यूस की थी। आज देख लो रेलवे कितने हाई स्केल पे पहुंच गई है, मेट्रो बुलेट ट्रेन आ गई हैं। सो ये किसकी इंट्रोडक्शन थी, ब्रिटिशर्स की ही थी ना। तो उन्होंने काफी नेगेटिव चेंजेस उनकी उनकी वजह से ज्यादा आए, पॉजिटिव मतलब वो चाहते नहीं थे कुछ पॉजिटिव करना बट वो हो गया। when the subjugation of one country by another leads to these kind of political, economic, social and culture changes, we refer to the process as colonialization. Basically you can mark this line, it is very important in this is the meaning of colonialization, कि बेसिकली कॉलोनियल होता क्या है, जब कोई अनदर कंट्री का बंदा मतलब कि बेसिकली कोई अनदर कंट्री की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स होती हैं वो आकर एक कंट्री में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चर चेंजेस करे, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉलोनियलाइजेशन। यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल चेंजेस एंड ग्रुप्स डिड नॉट experience these changes in the same way. That is why the book is called our past in the plural. Basically इसीलिए वो इस बुक का नाम हमने क्या रखा हुआ है, our past. So how do we know, हमें कैसे पता, what sources do historian use in writing about last 250 years of Indian history? बेसिकली आप मुझे एक सवाल का जवाब दो, हमें कैसे पता इतनी हिस्ट्री के बारे में, क्या ऐसे सोर्सेज उन्होंने यूज किए जिससे हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में, वो भी 250 साल पुरानी हिस्ट्री के बारे में। एवरीबडी सी दिस पिक्चर ना, दिस इज अ पिक्चर ऑफ द नेशनल archives of Indian came up in the 1920s. When New Delhi was built, the National Museum and the National Archives were both located close to the Viceroy Palace. This location reflects the importance these institutions had in British imagination. Britishers के लिए ये जो institution थे वो कितने important हुआ करते थे। So अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड, मतलब कि जैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे ना, राजपाट, बेसिकली हिंदी में मैं बोलूंगी राजपाट वाला काम जब करते थे, उनकी मदद से हमारे पास रिकॉर्ड्स कैसे बनते। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स is the official record of British administration. The British believed that the act of writing was important. मतलब ब्रिटिशर्स ये बहुत मानते थे कि एक्ट ऑफ राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज को नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिटिकल डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। शायद आज भी ये होता है, इसको हम रेड टेपिज्म बोलते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ, कि जब हम हर एक चीज को पेपर पे लिखते हैं और उसकी एक समरी तैयार करते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चीजों को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना, उसको हम बोलते हैं रेड टेपिज्म। रेड फाइल्स जो होती है ना कवर्स में विद अ वाइट कलर लाइक अ रिबन लाइक स्ट्रक्चर, वो उसको हम रेड टेपिज्म बोलते हैं। वंस दिस वाज डन, things could be properly studied and debated. This conviction produced an administrative culture of memos, noting and reporting.
फैक्ट्स। मैंने अभी जस्ट एक प्रीवियस स्लाइड में ही आपको बताया कि ब्रिटिशर्स ने एक बहुत अच्छा काम किया था। वो क्या काम था? एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। आज भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है? कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग, रिपोर्ट्स, मतलब हर एक चीज का एक बही एक खाता रखना, एक रिकॉर्ड रखना, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली रिपोर्ट्स बनाना, नोटिंग करना, ठीक है। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर नीड टू बी केयरफुली प्रिजर्व, सो they set up record rooms attached to all administrative institutions, the village tehsildar office, the collectorate, the commissioner's office, the provisional secretary, and the law courts all had their record rooms. Especially institutions like archives and museum were also established to preserve important record. Basically ब्रिटिशर्स ये बिलीव करते थे कि रिकॉर्ड रूम्स होना हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तहसील ऑफिस में होना चाहिए, कलेक्टर के ऑफिस में होना चाहिए, हर एक जगह एक रिपोर्ट रूम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम वहाँ पर अपनी सारी रिपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंटेशन को क्लियरली प्रिजर्व कर पाए। और ये आज भी होता है, ये ब्रिटिशर्स ही देकर गए थे और ये चीज़ें आज भी हो रही हैं। Letters and memos that move from one branch of the administration to another. In the year in the early years of the 19th century can still be read in the archives. You can also study the notes and report that district official prepared, or the institution and directorates that were set by official at the top to प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेटर। बेसिकली ये चीज़ें आज भी होती आ रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी कि रिकॉर्ड रूम्स होना बहुत ज़रूरी है, कि पुराने से पुराने रिकॉर्ड 19th सेंचुरी ब्रिटिशर्स के टाइम की चीज़ें आज तक हमारे रिकॉर्ड रूम्स में अवेलेबल है। आजकल तो सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया है, बट पुराने रिकॉर्ड्स आज भी हमारे रिकॉर्ड रूम्स में पड़े हुए हैं। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटिफुली रिटन बाय कैलीग्राफिस्ट, that is by those who specialized in art of beautiful writing। ये कैलीग्राफिस्ट की एक छोटी सी डेफिनेशन है। क्या है? by those who specialize in the art of beautiful writing। बेसिकली अगर वहाँ पे कीवर्ड आ जाता है कि कैलीग्राफिस्ट क्या होता है, तो यू गाइस कैन राइट इट डाउन। बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड वर प्रिंटेड एज प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। काफ़ी कुछ जब इनोवेटिव होने लग गया, फैक्स मशीन्स आ गई, ठीक है, प्रिंटिंग मशीन्स आ गई, तो ये सब चीज़ें को हमने नंबर ऑफ टाइम्स इसको कॉपी कर दिया। सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट। जनगणना का आपने नाम सुना होगा, सेंसस का नाम सुना होगा, वो भी एक तरह का सर्वे ही होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है इंडिया की, तो वही कह रहा है कि सर्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, कि आज से नहीं हो रहा, ब्रिटिश के टाइम से हो रहा है, कि जब सर्वेस बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी properly known before it could be effectively administrated। मतलब एक कंट्री को एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्री को रूल करने से पहले पता होना चाहिए कि कंट्री में क्या क्या है, तो सर्वे से ही पता लगेगा, इसलिए सर्वे बहुत जरूरी है। By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to the map the entire country। In the village, revenue surveys were conducted। Village में कौन से surveys हुए? Revenue surveys हुए। The effort was to know the topography। Topography means the land surveys, ठीक है। लैंड का मतलब किसके पास कितनी जमीन है, इसको हम बोलते हैं टोपोग्राफी। द सॉयल क्वालिटी, ठीक है, सोयल की क्या क्वालिटी, सोयल फर्टाइल है या नहीं। फ्लोरा फौना, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, फौना मीन्स पेड़, एनिमल्स। द लोकल हिस्ट्रीज कैसे हुई? बेसिकली लोकल हिस्ट्रीज हमारी कौन सी हुई? लोकल हिस्ट्रीज जो हमारे छोटे मोटे किंगडम्स थे, उनको हमने लोकल हिस्ट्रीज का नाम दिया। बहुत छोटे छोटे से राजपाट थे, उनको हमने क्या नाम दिया? लोकल हिस्ट्री। एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, इन सब के भी सर्वेज हुए। ऑल द फैक्ट सीन एज नेसेसरी टू नोन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटर द रीजन, मतलब उस रीजन को जानने के लिए सर्वेज बहुत इंपॉर्टेंट थे। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, सेंसस, मैंने अभी नाम लिया था इसका,
हमने इसका क्या अभी लिया था हिंदी में, हम इसको क्या बोलते हैं, जनगणना, सेंसस. सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 years. ठीक है, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक जीके क्वेश्चन भी है कि सेंसस एक कंट्री में कितने साल बाद होता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है आफ्टर एवरी 10 years. These prepared detailed record of the number of people in all the provision of India, noting information on caste, religion पे, ठीक है, occupation पे. There were many other surveys like botanical surveys, ठीक है, labs, zoological surveys means botanical surveys हम इसको कहते हैं प्लांट्स पे रिसर्च करना, zoological किस पे, एनिमल्स पे करना, ठीक है. आर्कोलॉजिस्ट जो हमारी पुरानी हिस्ट्रीज को निकालते हैं उनको हम आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो जमीनों में से सोने के बर्तन निकाल रहे हैं, ठीक है. जैसे द्वारका जी पानी के अंदर, ये किसने फाइंड किया, आर्कोलॉजिस्ट ही थे वो. एंथ्रोलॉजिकल कौन होते हैं, जो हमारे कल्चर के बारे में पता है, उनको हम एंथ्रोलॉजिकल बोलते हैं, ठीक है. इनके सारे सर्वे करना भी बहुत जरूरी है, फॉरेस्ट पे सर्वेस करना. व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल. फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस मीन्स इतना सब कुछ जो बड़ा सा है, of record we can get to know a lot, but we must remember that these are official records. हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ये official records हैं. They tell us what the official thought, what they were interested in and what they wish to preserve for posterity. ठीक है. These records do not always help us understand what other people in country felt and what lay behind their actions. ये हमें बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं बताते, बट फिर भी कुछ फैक्ट्स बहुत अच्छे से बताते हैं. So for that we need to look elsewhere. When we being to search for these other sources, we find them in penalty. True, they are more difficult to get than official records. We have diaries of people, accounts of pilgrims and travelers, autobiographies of important personality, and popular booklets that were sold in the local bazaars. As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. Leaders and reforms wrote to spread their ideas. Poets and novelists wrote to express their feelings. ये तो मैंने अभी आपको जो प्रीवियस स्लाइड में था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स का, बेसिकली वो ये कह रहा है कि हमें मतलब हर एक चीज तो नहीं हम पब्लिक को बता सकते ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स के थ्रू. तो इसीलिए हमने जब और एडवांसमेंट होती गई तो चीज़ें क्या आती गई, न्यूज़पेपर छपने लगे, प्रिंटिंग प्रेस आ गई, ठीक है. उसके बाद नॉवलिस्ट आ गए जो अपनी आइडियाज़, अपने पोएट्स आ गए, ठीक है. उसके बाद बुक्स ऑटोबायोग्राफीज बनने लगी, ठीक है. बेसिकली कुछ डायरीज आ गई, ट्रैवलर्स की, पिलग्रिम्स की, पर्सनालिटीज़ की बुक्स बनने लगी. तो इन सोर्सेज से हम लोगों को बता सकते हैं. All these sources, however, were produced by those who were literate. ये मतलब ये जो रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस हैं ये कौन पढ़ सकता है, जो पढ़ा लिखा होगा उसे समझ में आएगा. क्या आप अनपढ़ के हाथ में ये दे दोगे कि भाई ले इसको पढ़, ऐसा पॉसिबल है नहीं है. For these we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasant, the workers in the mines or the poor on the street, getting to know their lives in a more difficult task. जो अनपढ़ है उनके लिए कितना मुश्किल होता है ना अपनी हिस्ट्री को जानने के लिए, बट आजकल तो वो भी ईजी हो गया. फोन्स में इतनी चीज़ें आ गई हैं, वो लोग सुन सकते हैं, उस चीज़ को पढ़ नहीं सकते बट सुन तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं. तो उनके लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क था एट दैट टाइम कि हिस्ट्री को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस करना, ठीक है. Yet this can be done if we make a little bit of effort. When you read this book you will see how it can be. जैसे अभी मैं आप लोगों के लिए काम इजी कर रही हूँ, बच्चों को बुक में हिस्ट्री पढ़ना कितना बोरिंग लगता है ना, तो आई मेक अ वीडियो ऑफ इट, तो आप लोगों को लगेगा वाओ यार कितनी इजी है हिस्ट्री, हम लोगों को पढ़नी चाहिए, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आएगी. सो गाइज दिस इज लास्ट स्लाइड ऑफ मी. थैंक यू. We will meet again in the next video. Till then, stay safe, stay happy. Please do like, share and comment and tell how was my first video, so it can motivate me to post many more videos for you all. Thank you so much. Thank you guys. Bye bye.